So today we are going to discuss something which is very common, and I am really, first of all, I must thank the senior personnel sitting here. I've met them quite a few of them, and I have been seeing them for quite some time now, and I hope that I can be of help to you as well today. And I would request to keep the questions till the end with yourself, and we would like that the question answer session should be in the end. So we should first go through this presentation, and then there will be ample time for question answer session. All right. So may I ask, what are the commonest health problems in Pakistan? Infectious diseases. Sir, these are the commonest health problems: Mardana Kamzori, Qabz, and Bawasir. So बीवी के सामने शर्मिंदा होना छोड़ दें. मर्दाना कमजोरी का हमेशा के लिए फातमा, मर्दाना ताकत का तूफान, and शादी कोर्स. These are the things commonly seen every day, even if you travel by rail car. You will be seeing pictures, walls painted for these kind of things. वो तेल जिसे नींबू के साथ मिलाकर पिया जाए तो आपकी कब्ज मिनटों में ठीक हो जाएगी. The face, if you look very carefully, resembles a politician. बवासीर का जी गारंटी से इलाज है. मीर अहमद हाशमी साहब, खूनी बवासीर चंद दिन में खत्म करें, मौकों को मिनट में आसमानी तोहफा जी कोई. एंड ऑफ कोर्स एक खुराक से खून पहले तो दिस इज नॉट डेफलॉन एक्चुअली. So same thing happening across the border in India. ठीक है, advanced epigenetic center for infectious diseases. ये सारी Indian उससे ली हुई है जी. तनुज इलेक्ट्रिक थेरेपी. Today we are going to discuss hemorrhoids now. This is the topic for discussion. बाकी दो मर्दाना कमजोरी और कब्ज के कम. So today we are going to discuss hemorrhoids. History does not unfold in piles up. Very famous saying, Robert Adamski. Before we discuss hemorrhoids, let's have a look at the prevalence of the disease. The symptomatic hemorrhoids in Pakistan is estimated to be 10% in total population. 500,000 new cases of hemorrhoidal diseases annually reported in Pakistan. ये सोर्स नीचे लिखी हुई है. We will be giving you all the references. Now, current challenges for the management of hemorrhoidal diseases. Challenge क्या है, क्यों prevalence ज्यादा है, ये आप सबको हमने बता दिया. Commonest problems में से है. Majority of the patients इलाज कराने में देरी करते हैं. They present late. Awareness and right treatment of the disease in general population is very low. People prefer quacks over qualified doctors. And quackery is so deep-rooted that it is an estimate that there are 600,000 quacks in Pakistan. Herbal products, topical agents, over-the-counter sale होती है pharmacies में. And constipation, a low-fiber diet and sedentary lifestyle is a documented risk factors are very common in Pakistan urban population. Let's take a look at the history कि ये जो बीमारी है बवासीर, ये क्या historical perspective क्या है. Now, if we go and check the history, so the first documented mentioning जो इस affliction की है 1700 before Christ. Egyptian papyrus. ये papyrus क्या चीज थी जी? This was actually a tall grease-like plant used as paper to write. इसके ऊपर भी एक नुस्खा तहरीर पाया गया. Thou should give a recipe, anointment of great protection, smear a strip of fine linen therewith and place in the anus, that he recovers immediately. ये 1700 before Christ की oldest documentation है. Hemorrhoid. If you look at this picture, it's an 11th century English miniature, an operation to remove hemorrhoids.
Now, if you have a careful look at the instruments being used. A dagger and something which is to hold on one side. So this must be a very brutal treatment. Going to the Hippocratic corpus, this is actually a collection of 60 ancient Greek documents associated with the physician Hippocrates. He discusses a treatment similar to modern rubber band ligation. Celsus, 25 before Christ, describes ligation and excision. 13th century European surgeons made great progress and development of the surgical techniques, and in Europe, in England, in 1880s, colorectal surgery was separated from the general surgery. Now, what does the word, coming to the real topic now, what does the word hemorrhoid mean? It is derived from two Greek words, hema and rous, that means blood flowing. Since a ball is usually formed around the anus, so in Latin, pila means a ball. By definition, dilated, tortuous, submucosal, vascular cushions in the lower portion of rectum or anus, this is what constitutes hemorrhoids. Types, quick run through करनी है हमने आपको. Internal, located proximal to the dentate line, इसमें होती है primary 3, 7, 11, secondary in between the primary. External are located below the dentate line, and there are then internal, external hemorrhoids. अभी हम आपको इनकी picture दिखा देते हैं. Internal hemorrhoid, external hemorrhoid, formation of hemorrhoid. ये pictures हैं, आप देखते जाइए anatomical. इसमें आपको ये एक्सटर्नल हेमरॉइड बाहर है, प्रोलैप्स्ड इंटरनल हेमरॉइड्स. अभी आगे फर्दर आपको पिक्चर्स काफी सारी दिखा देंगे. नाउ इफ यू लुक एट इट, बेसिकली ये इस तरह की पिक्चर आती है इंटरनल पे, ये एक्सटर्नल है, एंड देन इंटरनो एक्सटर्नल आगे एक पिक्चर में आपको ज्यादा अच्छा लग जाएगा. काफी सारी पिक्चर्स अभी हम आपको दिखा देंगे. एक्चुअली ये ग्रेड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन यू डायग्नोज हेमरॉइड्स, क्योंकि ट्रीटमेंट ग्रेड्स के ऊपर डिपेंडेंट है. जहां पे भी जिस लिटरेचर को भी आप रिव्यू करेंगे, द ट्रीटमेंट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द ग्रेड ऑफ दैट. नाउ व्हाट इज ग्रेड 1? ग्रेड 1 इज अ ब्लीडिंग बट नॉट प्रोलैप्सिंग हेमरॉइड. ये डेंटेट लाइन से ऊपर, ठीक है, इंटरनल हेमरॉइड. ग्रेड 2 प्रोलैप्सिस बट रिड्यूसेस स्पॉन्टेनियसली, यानी ड्यूरिंग डेफिकेशन the prolapsed anal cushion will reduce spontaneously. Third degree prolapses but requires manual reduction. And fourth degree prolapses cannot be reduced and it can get strangulated. So these are the 4 grades. The whole purpose of today's gathering is, because I was told that people gathered here would be coming from general practice. So we would like you to tell you that which grades, up till which grades, the general physician can easily manage hemorrhoids. ये अपना रेहान इसकी ये वीडियोस जैसे शॉर्ट वीडियो आपको इन ग्रेड्स की बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी. Just watch carefully this. Your doctor may recommend a hemorrhoidectomy to remove your hemorrhoids if they do not respond to more conservative treatment. Hemorrhoidal veins are blood vessels within the walls of the rectum and anal canal. Hemorrhoids, also known as piles, occur when these veins become swollen and the tissue around them becomes inflamed. A swollen vein near the opening of the anal canal is called an external hemorrhoid. A swollen vein within the rectum is called an internal hemorrhoid. Internal hemorrhoids are classified by how advanced they are. First degree internal hemorrhoids are those that always remain inside the rectum.
Second-degree internal hemorrhoids will extend outside the rectum during a bowel movement and then return to the inside of the rectum on their own. Third-degree internal hemorrhoids extend outside the rectum during a bowel movement and then must be pushed back inside the rectum. Fourth-degree internal hemorrhoids always remain outside the rectum and cannot be pushed back in. So I hope you have an understanding now about the 4 grades of the hemorrhoid. Now what are the symptoms of hemorrhoids? Bright red, painless bleeding, mucoid discharge, prolapse, pain only on prolapse. And complications of hemorrhoids, ये हमें असूलन बाद में पढ़नी चाहिए थी, but it's just a reminder. Strangulation and thrombosis, ulceration, gangrene, ये पहली जो 3 हैं ये ग्रेड 4 के साथ ज्यादा एसोसिएटेड होती है. Portal pyoemia, type of septicemia that leads to widespread abscess formation, fibrosis. These are all. ये आपको एक छोटा सामने ये तस्वीरें complicated hemorrhoids की हैं. This is, you can see bleeding, ulceration, thrombosis and gangrene. ये complicated hemorrhoids हैं. ये भी बाहर इसके अंदर भी prolapsing ज्यादा है. अब बनती क्यों है इसकी कोई क्लियर एटियोलॉजी नहीं है. क्लियर एटियोलॉजी ना होने का मतलब बड़ी थ्योरीज है. बेताशा पोस्चर से लेके कि जी ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस इरेक्ट पोस्चर लीड्स टू ग्रेविटी प्रेशर इन द एनस दैट कैन कंस्टिट्यूट इन फ्यूचर दे कैन फॉर्म हेमरॉइड. लेकिन और इसको थोड़ा सा सपोर्ट इस तरह करते हैं कि प्राइमेट्स में चिंपैंजीज, मंकीज के अलावा एनिमल्स के अंदर हेमरॉइड्स नहीं होती, बारिंग ओल्ड डॉग्स. उनमें क्यों होती हैं वो नहीं पता. सो एक्सेसिव स्ट्रेनिंग, abdominal pressure, hard stools, shearing forces, loss of elasticity, so many theories. Portal hypertension and varicose veins. ये मैंने जान के ये तस्वीर लगाई है वो इसलिए कि ये जो rectal varices actually are not hemorrhoids. ये misconception. Textbooks of surgery, they describe them separately. Hemorrhoids actually are problems of the lower rectum and anal canal. लेकिन कोई भी hemorrhoid हो जब भी present करे, जो असल चीज है वो carcinoma of the rectum associated with hemorrhoids, a not infrequent diagnostic pitfall. ये जरूर rule out करना है. People might present, especially after the middle age, with a bleeding PR, आप hemorrhoid समझे. आपने काफी सारी प्रैक्टिकल तस्वीरें भी लगाई हैं. हमारा मकसद आज ये है कि अगर हमारा जनरल प्रैक्टिशनर ये पता कर ले कि उसने कहां तक बवासीर के ग्रेड्स को ट्रीट करना है और डायग्नोज कर ले with the help of this instrument, proctoscope. This is the only instrument which is required. So this is good enough for him. ये इसको बात डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट. अभी तक हमने जो पढ़ी है वो उसकी एटियोलॉजी पे हल्की सी बात की है, इंसिडेंट्स को, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. अब हम आ जाते हैं जो उसके लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं कि हाउ विल बी एबल टू डायग्नोज एंड मैनेज हेमरॉइड. डायग्नोसिस के लिए जी हिस्ट्री के बाद, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद जो चीज रिक्वायर्ड है वो दिस इज अ प्रोक्टोस्कोप. मेरे हाथ में 2 प्रोक्टोस्कोप्स हैं. ये मेरी इनसे रिक्वेस्ट थी काफी दिनों से डेफलॉन वालों से कि देयर शुड बी क्लासेस ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स जिसमें वॉलंटरीली हम उनसे पूछें कि अगर आपको अरसा हो गया आपने नहीं यानी किसी भूल गया जाता है, हम भूल जाते हैं तो हम आपको ये सिखा सकते हैं. ये आजकल एक वर्जन इसका ये आया जी. ये बाकी हम पढ़ने से पहले ये मैं ज्यादा दिखाना क्योंकि इस पे ज्यादा एम्फेसिस है. ये डिस्पोजेबल प्रोक्टोस्कोप भी आजकल अवेलेबल है, सस्ता है, ज्यादा महंगा नहीं है. और ये मेटल इंस्ट्रूमेंट तो बहुत पुराना है, आप ऑलमोस्ट सारे बंदे जानते हैं इसको यूज करना. लेकिन अगर आप चाहें तो माय यूनिट विल ऑलवेज वेलकम ऑल द जनरल प्रैक्टिशनर्स ऑफ द टाउन. मैं अभी बात कर रहा था ख्वाजा साहब से, आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स. मेरे वालिद साहब जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, तो वो हम लोग ये अप्रिशिएट करेंगे कि अगर कोई सीखना चाहे तो माय वार्ड इज ओपन फॉर एवरीवन. Examination.
रेक्टल एग्जामिनेशन, विजुअल एंड डिजिटल टेस्ट सिर्फ प्रोक्टो एंड सिग्मॉइड। सिग्मॉइडोस्कोपी में अभी वीडियो दिखा दूंगा। सिग्मॉइडोस्कोपी आपके लिए पॉसिबल नहीं है फॉर द जनरल प्रैक्टिशनर्स बिकॉज इट रिक्वायर्स एन इंसेफलेटर, अ लाइट सोर्स, काफी टीडियस सब प्रोसेस हो। प्रोक्टोस्कोपी एवरीवन कैन डू। Never treat a patient beyond your scope. This is the whole crux of the matter कि हम वो बवासीरें ट्रीट करें जो कि एक जनरल प्रैक्टिशनर इजीली कर सकते। Now before we आपको विजुअल इंस्पेक्शन के बाद अब हम हेमोरॉइड्स की मैनेजमेंट चूंकि पढ़ रहे हैं और हमने बात शुरू इससे की है कि प्रोक्टोस्कोप इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट दैट यू रिक्वायर। तो देन आई थॉट कि आपको मैं बता दूं कि ये पोजीशंस 3 अगर आप ज़हन में रख लें तो डायग्नोसिस करना कोई मुश्किल काम नहीं। इसमें देखें करेक्ट पोजीशन और इनकरेक्ट पोजीशन दोनों लिखी हुई। ये नी एल्बो पोजीशन कहलाती है। ये लेफ्ट लेटरल पोजीशन है वो इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। फर्क ये है, मैं आपको पिछली सॉरी बता नहीं, ये पीछे नहीं जाएगी, ये स्टॉप हुआ है, जरा उसको देखो पीछे करो। पिछली स्लाइड इसमें ये इनकरेक्ट पोजीशन इसलिए है कि इसमें और इसमें देखें ये स्पाइन स्ट्रेट आ जाती है। यू विल हैव टू लुक अपवर्ड्स। इसमें अगर आप बेंड करें तो आप ऊपर से देख सकते हैं। ये डिफरेंस है दोनों पोजीशन। सो दिस इज बेसिकली अ नी एल्बो पोजीशन, बट इसमें करेक्ट एंड इनकरेक्ट मैटर करती हैं बहुत सारी पोजीशन। मसलन अब ये इनकरेक्ट पोजीशन इसलिए है कि द बटक्स शुड बी ऑन हैंगिंग बियॉन्ड द एज ऑफ द एग्जामिनेशन कार्ड। इस पे आप नहीं कर सकेंगे, इस पे सही हो जाएगा। ये लिथोटमी पोजीशन है, ठीक है, इस पे भी आप प्रोक्टोस्कोपी इजीली कर सकते हैं। नाउ इंस्पेक्शन, फर्स्ट पार्ट इंस्पेक्शन का है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप पहले पेरिएनल एरिया इंस्पेक्ट करते हैं। इस तरह की हेमरॉइड्स हमारे पास आती हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्रेड्स ये ग्रेड 3 to 4 है। ये ऑपरेशन के बाद इसकी ये पिक्चर है। ये वही पेशेंट है। ये देखें, ये अनदर ग्रेड 3 प्रोलैप्स्ड हेमोरॉइड। ये ग्रेड 3 to 4 के हैं सारे दोनों पिक्चर्स। अब देखें, ये पिक्चर लगाने का मकसद ये है कि व्हेन अ पेशेंट कम्स टू यू and he says that there is bleeding PR, every case may not be hemorrhoids. If you do a careful inspection, तो ये देखें ये बेसिकली पेरिएनल फिस्टुले बने हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए और ये देखिए, ठीक है। अब दिस इज नॉट हेमरॉइड्स, दिस इज समथिंग एल्स। इसकी हमने बायोप्सी वगैरह भी बाद में की है। और अगर आप गौर से इस पिक्चर को देखें, शायद अगली पिक्चर से ज्यादा बेहतर है, ये देखें, ये हमने इसका पीआर किया है। ये पीआर करने पे पीप कैसे बाहर निकल रही है। सो दिस इज बेसिकली अ कॉम्प्लिकेटेड केस, दिस इज नॉट अ केस। और ये देखें, इसकी प्रोक्टोस्कोपी हमने की है, इसके अंदर ये हेमरॉइड्स पड़े हुए सेकंड ग्रेड के। अब अ जनरल प्रैक्टिशनर शुड नॉट ट्रीट दिस केस। प्रोक्टोस्कोपी भी कर लेगा, लेकिन वो ये ना समझ, बिकॉज देयर आर ऑलवेज एसोसिएटेड इन प्रॉब्लम्स। आगे हम पढ़ेंगे मैलिग्नेंसीज भी एसोसिएटेड हो सकती है। ये देखिए वही केस है। अब आपको शायद इस व्यू में ज्यादा बड़ा वो हेमरॉइड्स अंदर से नजर आ रहा है। अच्छा, ये विल इट प्ले, ये पीआर कैसे करना है? गलत हो गया, डबल क्लिक कर, वापस करें। ये पीआर की वीडियो भी हमने इसलिए बनाई है कि ये लिथोटमी पोजीशन में पेशेंट ड्रेप्ड एंड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पेक्शन, क्योंकि मैंने आपसे कहा कई दफा सीए रेक्टम आपको पीआर पे पिक हो जाते हैं। हमने परसों भी पिक किया, ये उसी पेशेंट है।
तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप इंस्पेक्शन पीआर प्रोक्टोस्कोपी सही कर लें तो डायग्नोसिस अचीव करना मुश्किल काम नहीं है, और कहाँ पे रुकना है वो आप रुक सकते हैं। Right? First I did the inspection, now I'm inserting my needle. I'm going to palpate all the four walls. I can feel the right side being normal, but when I rotate my finger, I can feel the growth. It is reaching the tip of my finger at 3 o'clock. I can feel the tip of the coccyx. No, I can't, because the tumor is extending all the way around at 6 o'clock position. And I am now going to feel the anterior wall. Oh God, I can feel the tumor here as well, but I can still feel the prostate. The median sulcus is flexible, and I can see the mucosal nuclearity over the prostate. When I withdraw the finger, it is slightly stained with black. Right? This is the way this is how you can feel the four walls. You should always inspect the finger when you withdraw. ये दूसरी वीडियो है जी, एक और ये दूसरी देखें। किसी भी टेक्स्ट बुक ऑफ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ऑफ सर्जरी को अगर आप पढ़ेंगे तो पहली चीज जो प्रिकॉशन में लिखी है वो यही है कि आपने सीए रेक्टम रूल आउट करना। इफ यू कैन डू, अब दिस इज बेसिकली सिग्मोइडोस्कोपी है, ये वॉल्स ऑफ ह्यूस्टन नजर आ रहे हैं। इस पिक्चर को अगर आप इस वीडियो को अगर आप गौर से देखें तो इट इज एक्सटेंडिंग beyond the scope of a proctoscope. Proctoscope can just tell you about 8 centimeters, around 8 centimeters of the normal. अगर आप anatomy पे मद्देनजर रखें तो 8 से 10 centimeters से beyond नहीं जा। Sigmoid में yes you can go up to 18-25 centimeters. So ये सिंपल 30 सेकंड ये वीडियो है, इसको आप देख लें। ये आजकल ना प्रोक्टोस्कोप इसके साथ लाइट सोर्स भी अटैच हो सकती है। ये हमने सोचा कि ये बेहतर होगा कि आपको बता दें कि लाइट सोर्स में पुरानी इस प्रोक्टोस्कोप में और इसमें फर्क सिर्फ ये है कि इसमें आपको टॉर्च मारनी पड़ती है राइट शोल्डर से, इसमें नहीं है, ये ल्यूमिनस है। आपने जेल लगाना है, अंदर करना है और साथ इसके लाइट सोर्स अटैच है। इसको आगे इसको भी आगे कर, मतलब बहुत लंबी है। अब हमने शुरू में थोड़ा सा पढ़ा था एटियोलॉजी, अब इसमें मजीद एड ऑन इन वीडियोस के बाद देखें एनोरेक्टल डिफॉर्मिटी, हाइपोटोनिक एनल स्फिंक्टर और ये ग्रेविड यूट्रस डिलॉजिकल, ये सारी चीजें पीआर प्रोक्टोस्कोपी के ऊपर काफी हद तक आइडिया हो जाता है। अब ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं किसी भी हेमरॉइड के? ट्रीटमेंट ऑफ हेमरॉइडल डिजीजेस कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। Consistent relief of all hemorrhageal signs and symptoms, protection against recurrence. ये 2 आपके एम्स होते हैं। What could be recommended treatment for a hemorrhageal attack? 3 चीजें बताई जाती हैं: टॉपिकल ट्रीटमेंट, इम्यूनोएक्टिव ड्रग्स एंड सर्जरी। नाउ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल का ये एक मैंने आपको एक कोट है यहाँ पे कि टॉपिकल एप्लीकेंट्स ऑइंटमेंट सारे हकीम सब कुछ जो है ना ये बड़े सियाने हैं। ये क्या करते हैं कि टेम्पररी रिलीफ को भी जरूर देता है, शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल जाता है, पेशेंट ट्रैप हो जाते हैं बेचारे, बट दे डू नॉट रिवर्स द अंडरलाइंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद हेमरॉइड्स। देयर आर नो एम्पिरिकल डाटा टू सपोर्ट देयर वाइडस्प्रेड यूज। ये जो टॉपिकल ऑइंटमेंट्स हैं, कितनी ऑइंटमेंट पाकिस्तान में यूज होती है, हम आपको रोज हमारे पास एडवांस के साथ ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल हेमरॉइड्स। ये सेंटेंस पढ़ने वाला है कि मेडिकल ट्रीटमेंट इज ऑलवेज इंडिकेटेड। ये आपने ग्रेड 3-4 में भी आपने देनी। मेडिकल ट्रीटमेंट सफिशिएंट इन मोर देन 75% ऑफ केसेस। कुछ लोग 50% to 90% की रेंज लिखते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट।
Combination of flavonoid derivatives, the only pharmacologically proven medical management. ये डेफ्लॉन वाले so far इनका कंपटीशन इसलिए नहीं आया कि कंपटीशन कंपेटिटर कोई इतने स्ट्रॉन्ग थे ही नहीं, वो इससे बेहतर कोई चीज अभी तक नहीं आई। अब थोड़ा सा वर्ड हम पढ़ लेते हैं अबाउट मेडिकल डायोस्मीन। फ्लेवोनॉइड डेरिवेटिव है, द ओनली फार्माकोलॉजिकली प्रूवन मेडिकल मैनेजमेंट, एक्सक्लूजन ऑफ अदर कॉजेज ऑफ रेक्टल ब्लीडिंग स्पेशली कोलोरेक्टल। मैं फिर इसको एम्फसाइज करता रहूंगा कि आपने एक दफा मेलिग्नेंसी रूल आउट कर ली है पीआर प्रोक्टोस्कोपी करके, या अगर आपको शक है तो आप उसकी क्रोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी करके फिर आप हेमोरॉइड्स की ट्रीटमेंट पे आ जाए। कंजर्वेटिव में आपने इनको फाइबर डाइट, स्टूल सॉफ्टनर, नॉर्मलाइजिंग द बाउल एंड डेफिकेटरी हैबिट्स ये सारा बताना है। अब मेडिकल मैनेजमेंट इज ऑलवेज इंडिकेटेड सफिशिएंट। अगर आप ट्रीट करना शुरू करें 50% लोग शायद ठीक ही हो जाए। आप combination of flavonoid derivative 500 milligram, regularization of gut motility and defecation, general and dietary, ये general advice medical management के साथ अगर आप दें डेफ्लॉन के साथ तो there is a good chance कि 50% cure rate आप अचीव कर। अब a word in depth about डेफ्लॉन। What is diosmin? है क्या चीज? 90% of डेफ्लॉन is diosmin. इट इज अ केमिकल प्रोडक्ट। बनती कहां से है? ये इसका केमिकल फार्मूला है और इसके साथ डेफ्लॉन में हेस्परडीन 10% है और डायोस्मीन 90% है। द फ्लेवोनॉइड डायोस्मीन एंड हेस्परडीन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रुटेशिया ऑरेंटिस, प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आती, व्हिच बिलोंग्स टू सिट्रस जीनस। दीज एक्सट्रैक्ट्स आर देन ट्रीटेड केमिकली। और आप अगली पिक्चर देखें, ये है जी इसकी सोर्स। ऑरेंजेस, मेरे उस्ताद प्रोफेसर महमूद यास, जिनका मैं जिक्र करना अपने हर लेक्चर में मुनासिब समझता हूं, वो ये कहा करते हैं कि अगर आप ऑरेंजेस खा लें, रेगुलर ऑरेंजेस खाएं तो बवासीर नहीं होगी। ये उनका तजर्बा है। इफ यू रिकमेंड योर पेशेंट्स कि आप ऑरेंजेस, ये सिट्रस जो तो क्योंकि तमाम ये डेफ्लॉन भी डेरिवेटिव तस्वीर उधर से ही आई है ना। यूनिक मोड ऑफ एक्शन है इसका, क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। डेफ्लॉन acts at the core of the venous inflammation with a unique vein specific anti-inflammatory action है इसका। ठीक है, it inhibits the leukocyte oblique endothelium interactions. Deflon breaks the vicious circle of venous inflammation by suppressing the damage of venous walls and of course prevents formation of inflammatory mediators. Venous tone action, ये venous tone को increase करती है, strengthens venous tone, improves microcirculation, improves lymphatic drainage. Undesirable side effects क्या है? ये बहुत कॉमनली आपसे पूछेंगे लोग कि जी इसको हम खा तो लें डॉक्टर साहब, और होता क्या साथ? अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट्स, अगर आप इसकी, इन्होंने जो इसको अपना ब्रेकअप किया हुआ है कि लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 in 10 हो तो ये वेरी कॉमन है, और कॉमन अगर करें तो ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 in 100 केसेस। तो इस तरह इन्होंने इसको वेरी कॉमन, कॉमन और नॉट कॉमन या कैन नॉट बी एस्टिमेटेड करके नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स, रेयर डिजीनेस, हेडेक्स हो सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, commonly diarrhea, dyspepsia, nausea, vomiting, uncommon colitis, frequency not known abdominal pain। ये साइड इफेक्ट्स ही मैं खुद यूज करा रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत कम एनकाउंटर होते हैं। अब अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट, स्किन एंड सबक्यूटेनियस डिसऑर्डर्स, रेयरली है कि रैश कभी कभी अपीयर हो जाता है इसके इस्तेमाल से। लोग आएंगे, कई दफा आ जाते हैं, 1-2 आए थे मेरे पास भी कि जी रैश है, बट इट सेटल्ड, इट वाजंट वेरी सीरियस। अब यूज ऑफ डेफ्लॉन, ये दूसरा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आमतौर पे आपके पास जीपीज के पास पेशेंट्स आते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर में ख्वातीन को बवासीर बन जाती है प्रेगनेंसी के इंड्यूस होने की वजह से। तो क्या वो सवाल करते हैं जी कि आप डेफ्लॉन हम दे सकते हैं प्रेगनेंसी में और लैक्टेटिंग मदर्स में?
लैक्टेटिंग मदर्स में आप दे सकते हैं, लेकिन जो प्रेगनेंसी है, अब ये इनकी कंपनी कहती है कि जी हमें आंसर क्लियर नहीं पता तो आप मत रिकमेंड करें. सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ डेफ्लॉन. ब्रेस्ट फीडिंग में मैंने बताया आपको दे सकते हैं, और इसमें फिर वही आगे सवाल आएगा कि ये इसका फिर वही हम रिपीट कर रहे हैं लेकिन इसको हम स्किप कर देते हैं. ये नेशनल हेल्थ गाइडलाइंस हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस एल्गोरिथम. देखें ये नेशनल गाइडलाइंस हमारे पास जब आई थी तो हेमोराइडल डिफरेंशियल डायग्नोसिस, सिम्टम सजेस्टिव ऑफ हेमोराइड्स, गैदर द मेडिकल हिस्ट्री, डीआरई, प्रोक्टोस्कोपी इफ रिक्वायर्ड, एक्सक्लूड. देखें इन्होंने भी पहले पाकिस्तानी गाइडलाइंस में भी पहले मैलिग्नेंसी रूल आउट की. देन कंप्लीट कोलोन इवैक्यूएशन सिग्माइडोस्कोपी, लुक फॉर एसोसिएटेड हिस्ट्री एंड साइन एंड सिम्टम्स. ये गाइडलाइंस है. अब की पॉइंट्स क्या थे इन्होंने जो हमें रिकमेंड किया? ग्रेड 1 and 2 digital rectal examination is very important. 90% patients do not require surgery for grade 1 and 2 if provided medical treatment. Topical creams for short term, यानी डेफ्लॉन डाइटरी मॉडिफिकेशन प्लस लोकल एप्लीकेंट्स. ये डाइटरी मॉडिफिकेशन, डेफ्लॉन, टॉपिकल ट्रीटमेंट. दिस इज कंसेंसस स्टेटमेंट फ्रॉम ऑल लीडिंग सर्जन्स जो पाकिस्तान के थे, उन्होंने ये हमें गाइडलाइन दी. अब डेफ्लॉन 500 सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस हेमोराइडल सिम्टम्स. इसको हम स्किप करके आगे चलते हैं. मैं आपको असल ये देखें, आपने पेशेंट डायग्नोज कर लिया फर्स्ट सेकंड डिग्री का, आपने उसको डेफ्लॉन रिकमेंड की रिकमेंडेड डोजेज में, जो कि 2 टैबलेट्स TDS है फॉर द फर्स्ट 4 days. 80% विल स्टॉप ब्लीडिंग ऑन 3rd day and on day 7 94% will not bleed. This is a BGS, Bridgel Surgical Bypass. So it's a very effective drug. Takes away a lot of patients from us surgeons. हमारी सर्जरियों पे काफी कदक पड़ती है, बट वी आर स्टिल हैप्पी अगर आप पेशेंट ट्रीट कर लें, सर्जरी की जरूरत ही ना पड़े. Now this is the dosage. It is available. You can all learn from the company representative. यहां पे हमारी सर्जिकल मैनेजमेंट यहां पे शुरू होती है. आप देखें इसमें भी जीपीस का बड़ा रोल है. आप स्क्लेरोथेरेपी और रबर बैंड डायलिगेशन कर सकते हैं. यहां पे भी यहां तक आपकी लिमिट है, यानी आप शॉर्ट ऑफ सर्जरी, ओपन सर्जरी, आप देखें आपने सारी बवासीर खुद मैनेज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इफ यू कैन डायग्नोज इट वेल विद प्रोक्टोस्कोपी एंड PR. ठीक है. अब ये है दी इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी. आई कैन नॉट डेमोन्स्ट्रेट यू स्क्लेरोथेरेपी हियर, बट इट इज नॉट अ डिफिकल्ट जॉब. इट इज वेरी इजी. सिर्फ केयर ये होती है कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाए. सब म्यूकोजल इंजेक्शन लगाना होता है और ये मुश्किल नहीं है. ये ब्लीडिंग सेकेंड डिग्री हेमोरॉइड के लिए बड़ा इफेक्टिव वे ऑफ ट्रीटमेंट है. यू डू नॉट नीड टू रेफर इट टू द सर्जन. ये आपने एक इंजेक्शन लगाना है. 5% फिनोल इन आमंड ऑयल या सोडियम टेट्राडिसाइल का 5 cc का इंजेक्शन है. सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एनोरेक्टल जंक्शन पे जहां पे बेस ऑफ हेमोरॉइड है, ये देखें ये मार्कर लगा हुआ, यहां पे आप सब म्यूकोजा में, क्योंकि अगर आप गलत इंजेक्शन लगाएंगे तो इसकी 4 बड़ी ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. पेल्विक एब्सेस बन सकती है, इवन रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला रिपोर्टेड है, इवन इंपोर्टेंस रिपोर्टेड है और एब्सेस फॉर्मेशन रिपोर्टेड है. तो ये आपने थोड़ा एहतियात करना है. और इसकी सबसे बड़ी इस टीके की ट्रीटमेंट का फायदा क्या है कि अगर ये दर्द होगा तो ये गलत है. यानी आपने थोड़ा सा इंजेक्ट किया, पेशेंट ने पेन फील किया, तो यू स्टॉप, यू विथड्रॉ. गैब्रियल सिरिंज कराती है, पहले यूज होती थी, आजकल डिस्पोजेबल सिरिंज यूज होती है. नाउ दिस इज बैंड लाइगेशन. ये भी ग्रेड 2 ब्लीडिंग हेमोरॉइड के लिए बड़ी अच्छी वो है. ये बैरन्स एप्लीकेटर कहते हैं, इसका असल नाम ये है. और ये बैरन्स एप्लीकेटर में रबर बैंड्स को लगाया जाता है. ये आपको 10 दिन के बाद स्लफ ऑफ हो जाता है बैंड लगाने के, लेकिन याद रहे कि 10वें दिन ब्लीडिंग हो सकती है. इसमें ये कॉम्प्लिकेशन है थोड़ी सी. सो आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट कि स्क्लेरोथेरेपी आप लोग खुद करें, बैंड लगा दें, लेकिन अगर उधर सेटअप पे लगाइएगा जहां पे आपको ब्लीडिंग PR अगर होती है 10वें दिन, तो आप उसको पकड़ सकें. ठीक है. ये बैंड लाइगेशन की टेक्निक की हमने कोशिश की आपको जल्दी जल्दी बताने की. सॉरी अबाउट योर हेमोरॉइड्स.
ये इतना बड़ा बैंड है, आप देखें टायर पकड़ा हुआ है, इसका मतलब है बहुत बड़ी बवासीर है तो आप बैंड नहीं लगा सकते. Operative treatment. Now that is where we come in the end, the surgeons. I need something stronger against these hemorrhoids. इस कार्टून ने डिपिक्ट किया है कि वाकयातन अखीर में हथौड़ा मारने के लिए हम सर्जन्स बचते हैं. Third and fourth degree hemorrhoids are our hemorrhoids. Even second degree hemorrhoids which fail by conservative management, fibrosed and complicated, all hemorrhoids are surgeon's hemorrhoids. Hemorrhoidectomy, ये जल्दी I'll run through. Milligan Morgan operation है. This is 100 years, more than 100. दो सर्जन थे, उनके नाम पे है. और ओपन मेथड है और क्लोज मेथड है. ये आपको तस्वीरें हम दिखा देंगे जल्दी जल्दी, और इसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि जी ओपन टेक्निक में जख्म खुला छोड़ देते हैं. जो मैंने आपको शुरू में हेमराइड की तस्वीर दिखाई थी वो मिलिगन मॉर्गन ओपन टेक्निक थी, जिसमें हमने आपको एक ग्रेड 3-4 की हेमराइड दिखाई थी और बाद में ऑपरेटेड तस्वीर दिखाई थी. सो दैट वाज मिलिगन मॉर्गन ओपन मेथड. ये उसकी पिक्चर्स हैं जी, हम स्किप करेंगे. स्टेपल्ड हेमराइडेक्टमी एक चीज आई थी लेकिन अब चली गई है. स्टेपल्ड हेमराइडेक्टमी में इट वाज अ सर्कुलर स्टेपलर फायर्ड थ्रू द एनस. ग्रेड 3 प्रोलैप्स के लिए इसमें यह था, चूंकि बाहर सर्जरी कोई नहीं होती थी, स्कार कोई नहीं था, तो कॉस्मेटिकली रिजल्ट्स बड़े अच्छे थे, तो ये पॉपुलर हुई. लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्ट्रक्चर बनने का चांस ज्यादा हो गया तो ये ऑब्सोलीट हो गई, अब आजकल नहीं करते. एंड देन ऑफ कोर्स ये इसकी तस्वीरें. देन कम्स अनदर ट्रांसएनल हेमोरॉइडल डीआर्टेरियलाइजेशन. ठीक है, इसे हेमोरॉइडल आर्टरी लाइगेशन रिपेयर भी कहते हैं. ये क्या करते हैं इसमें आपको, ये वापस इधर से जाएगा. इसमें जी आपको आजकल एक प्रोक्टोस्कोप होती है, उसके साथ डॉपलर प्रोब पे आप फीडिंग वेसल जो होती है इनोरेक्टल जंक्शन पे उसको स्टिच लगा देते हैं, जो कि आपको फीड कर रही है हेमोरॉइड को. प्राइमरी हेमोरॉइड बहुत बड़ी, उसके लिए बड़ा अच्छा ऑपरेशन है. इट इज गेनिंग पॉपुलैरिटी. एंड ऑफ कोर्स पोस्ट ऑपरेटिव केयर. ये जहां पे कई दफा जी हमारे पास पेशेंट्स रेफर होते हैं, हम जीपीस को वापस भेज देते हैं, कहते हैं जी पोस्ट ऑपरेटिव रिपेयर आपका जीपी हमसे बेहतर कर लेगा, और वो कर लेता है. इसलिए कि वो उनको 2 वार्म बाथ्स देने होते हैं, बल्क लैक्सेटिव देते होते हैं, और हम जीपी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस पेशेंट का पीआर प्रोक्टोस्कोपी अभी ना कीजिएगा, कुछ दिनों इसका सिर्फ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करें और 3 to 4 वीक्स के बाद हमें फॉलो अप करें. अच्छा, अब हेमोरॉइडेक्टमी क्लासिकली ग्रेड 3-4 की जाती है, लेकिन आई टेल यू मैं डेफ्लॉन वहां पे भी देता हूं. क्यों? बिकॉज आई हैव सीन थ्रू माय ओन एक्सपीरियंस कि पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग एंड पेन बहुत कम हो जाते हैं आफ्टर द सर्जरी. प्रिवेंशन कैसे करनी है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ईट फाइबर डाइट, ड्रिंक पैंटी, ये सारी मुख्तलिफ इसकी बातें आपको पता ही है. टू इन्वेंट यू नीड अ गुड इमेजिनेशन एंड अ पाइल ऑफ जंक. यू हैव टू हैव अ जंक टू रिमूव सम. अगर आपने कोई जंक पालेंगे तो फिर उसको रिमूव करेंगे. अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी ये भी हम बता के भेजते हैं कि जी अर्ली यूजुअली रिकमेंडेड स्टेज जो है वो 1 डे का है, लेकिन अर्ली इसमें पेन, एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन, रिएक्शनरी हेमरेज, ये तीनों पहले 24 घंटों में अस्पताल में ही हो जाते हैं, तो डील भी हो जाते हैं. रिएक्शनरी हेमरेज हो तो आप इसकी एनल पैकिंग कर सकते हैं, और अगर एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन हो तो यूजुअली कई दफा हमें कैथीटराइज करना पड़ता है पेशेंट, लेकिन 24 घंटों में ठीक हो जाता है. लेट कॉम्प्लिकेशंस में सेकेंडरी हेमरेज है. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. ये होता है जी 8वें दिन, 10वें दिन, और ये होता है. तो जीपी को पता होना चाहिए कि मैंने जो पेशेंट सर्जन को भेजा था 7वें 8वें दिन ये एक्सपेक्टेड है. अगर वो ब्लीडिंग ज्यादा हो तो यू कैन ऑलवेज शुड ब्रिंग द पेशेंट बैक टू द हॉस्पिटल. एनल स्ट्रक्चर, एनल फिशर, इनकॉन्टिनेंस, यस दे आर लेट कॉम्प्लिकेशंस. कॉमन सेंस इज अ फ्लावर दैट डजंट ग्रो इन एवरीवन्स गार्डन. सो इसका सेइंग का मतलब ये है कि जनरल प्रैक्टिशनर्स आर वेरी वाइज पीपल टू मी. They can really deal so many things which we can't, I admit. And if given a chance, they fare better than us in most of the fields. ठीक है? In most of the fields, yes they are.
I thank you very much. And if now there are any questions, I am here to answer. Yes, please. Yes, please. जी जी Thank you very much. I'm Dr. जी जी please. Regarding this different position of points, you know, that 3, 7 and 11 o'clock position. जी 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 जी. And in which condition we will label these in the spine position, lithotomy or knee position? Excellent question. Lithotomy position. आप उसको स्टैंडर्ड पोजीशन lithotomy मान. ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. प्राइमरी हेमोरेड एक्चुअली आपकी जो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है ना, ये जब नीचे जाके डिवाइड होती है, डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस. रेक्टम के राइट साइड में चली जाएगी. इसकी जो 7 और 11 है, इसकी 2 डिवीजन ऑन द राइट और 3 o'clock ऑन द लेफ्ट. ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंगली आप जब लिथोटमी पोजीशन में रखते हैं तो 12 o'clock वुड बी आप जो उसकी वेजाइनल ऑरिफिस या स्कॉटल पोजीशन है वो 12 o'clock है. वर्टिकली डाउन इज 6 o'clock, 3 is on the left, 9 is on the right. We can say right anterior, right posterior and left anterior. That is better. जी, अब वैसे क्लॉकवाइज डिस्क्रिप्शन सर वर्ल्ड वाइड होती है, तो हम उसी पे आपको इंसिस्ट करेंगे कि आप भी जब अपना नोट्स डालें तो उसका. The other thing is use of nitroglycerin ointment. Before GTN paste की बात and है. after the treatment. GTN पेस्ट की बात है, Yes. मुझे पता. नाउ ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट पेस्ट है, ये इसकी प्रिपरेशन आती है. ये मैंने 14 साल हो गए मैंने नहीं इस्तेमाल किया है. मैं आपको उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजन देता हूँ. GTN पेस्ट का आप लिटरेचर भी पढ़ लीजिएगा. इसकी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब आप इसको लगाना शुरू करते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ रिकमेंडेड 0.2 to 0.5% टू स्टार्ट देता है. It can go to a strength of 2%, but people start having very severe headaches. अगर हेडेक ना भी हो तो आप इसका लिटरेचर रिव्यू कर लीजिए. 66% सक्सेस रेट है 3 months के बाद. और GTN पेस्ट यूजुअली आप फिशर्स में In a spaz जो होता है after सर मैं नहीं यूज कराता. after piles ligation. मैं अर्ज कर रहा हूँ सर, मैं ये फिशर के लिए इस्तेमाल होता है. हेमोरेक्टमी के बाद सर मैंने GTN पेस्ट कभी भी इस्तेमाल नहीं किया. मैं वैसे आपको बताऊं, मैं एक्यूट जो क्रॉनिक एनल फिशर है उसमें भी मैंने छोड़ दिया इसको इस्तेमाल. इसके रिजल्ट्स ठीक नहीं है क्योंकि मरीज आप 3 महीने लगाते रहते हैं. 33% फेलियर रेट इज अ बिग फेलियर. दिस वाज द आइडिया. Sir, the other question is the use of, you mentioned that sits baths should be used. Sits baths. What about the ice applications? नहीं, आइस नहीं. 6 बार्स होने के हम क्या रिकमेंड करते हैं? ये किताब BD लिखती है. अगर आप अच्छी टेक्स्ट बुक उठाएं तो BD लिखा हो. हम TDS रिकमेंड करते हैं. हमारे कॉम अब देखें बहुत सारी चीजें टेलर करनी पड़ती है. गोरा जो है ना वॉश डेफिकेशन करता है 3 दिन. कई यूरोपियन नेशंस ऐसी हैं जो 4थे दिन डेफिकेट करती हैं. हर मुल्क की अपनी कहावतें हैं, अपनी मुल्क के अपने मसाले. हमारे मुल्क के अंदर जब हम ये सिट्स बाथ रिकमेंड करते हैं इसमें हम आइस नहीं लगाते. हम क्या रिकमेंड करते हैं? हम करते ये हम उनको कहते हैं कि आपने सिर्फ पानी में बैठ जाना है, टकोर कर, लफ्ज़ टकोर यूज करें. टकोर करनी है नीम गर्म पानी की. और अगर आपने ज्यादा उसमें उनकी पायोडीन का भी कोई खास रोल नहीं है, इतनी डाइल्यूट हो जाती है. आप 2 चमचे डालते हैं ना सारे जनरल प्रैक्टिशनर आमतौर पर, कोई फायदा नहीं होता. ये सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर स्लफ बनता है वो बड़ा पेनफुल होता है. आप 2 दफा कराएंगे स्लफ ज्यादा बनेगा, 3 दफा कराएंगे कम होगा, पेन पोस्ट ऑपरेटिवली कम. सो आई वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट यू कि आप TDS बात कराएं. 3 दिन को होते हैं ज्यादा, 4थे दिन के दूर. And sir, last question is the date complication about perianal abscess, number 1. पेरिएनल एब्सेस की इसका डेट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है आफ्टर प्रोसीजर ऑफ दी हेमोरेक्टमी के बाद. हेमोरेक्टमी और लाइट. जी मैं बताता हूँ इसमें जो कॉम्प्लिकेशनें लिखी हुई हैं वो फिशर भी लिखा हुआ है. और इसीलिए कहते हैं कि अच्छा सर्जन जब हेमोरेक्टमी कर देता है ना तो एजेस ट्रिम करता है. वो एजेस मुड़ जाए तो पेरिएनल फिस्टुला भी बन सकता है, फिशर भी बन सकता है. लेट कॉम्प्लिकेशन एब्सेस फॉर्मेशन मैंने भी देखी एंड आई डू नॉट थिंक ये सर पेरिएनल हेमाटोमा का
हम लोग क्या कर सकते हैं अच्छा, this is actually a separate question, but I would love to answer it. Perianal hematoma is known as a 5-day, Milligan ने इसको describe किया हुआ है. It's a 5-day curing disease. Perianal hematoma, external hemorrhoidal plexus की representation. Perianal hematoma बन जाता है स्ट्रेनिंग से. मेरे पास थाई किक बॉक्सर्स आते हैं, वो जो किक्स नहीं लगाते, हैवी वेट लिफ्टर, स्ट्रेनुअस एक्टिविटी, क्या होता है कि पेरिएनल छोटी सी नीबल फटती है और हेमाटोमा बन जाता है. अब इसके पास आपको आइडियली 5 दिन इंतजार करना है. यू शुड वेट फॉर 5 डेज. कहते ये हैं कि 5 डेज में इट्स अ सेल्फ क्यूरिंग डिजीज. हेमाटोमा इवैपोरेट हो जाएगा. आपने उसमें आप आइस लगा सकते हैं, उसमें आप आइस लगा सकते हैं, एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, पेन रिलीफ भी दे सकते हैं. And if you are competent enough, this is what I'm going to, but with full authority, इंशाल्लाह ताला, आपको कभी नुकसान भी नहीं होगा. आप लोकल लगा के ड्रेन भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं. GP can do it. Sir, do you recommend any embroidered ointment along with Deftones? Local. Topical, yes. after Sir, yeah, is the नहीं, आपने Topical जी 3 for conservative treatment. किधर गया यार वो माइक किधर ले? 2 माइक नहीं है. सो वेरी गुड क्वेश्चन है. इनका सवाल है जी कि डेफ्लॉन के साथ क्या टॉपिकल एप्लीकेंट यूज कर सकते हैं? बाय ऑल मींस यस. बाय ऑल मैंने इसमें अगर आप गौर शायद स्किप हो गया. टॉपिकल एप्लीकेंट रिकमेंडेड है डेफ्लॉन के साथ. मेडिकल ट्रीटमेंट का पार्ट है अलोंग विद डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. जी सर, आपने कुछ कहा? आप देखें, आप जो है कोई, मैं उसके ऊपर जाने वाला, देयर आर 1 मिलियन ऑइंटमेंट्स इन द वर्ल्ड. थ्रू योर ओन एक्सपीरियंस आई वुड रिक्वेस्ट. वैसे मैं पर्सनली खुद क्या करता हूं, मैं बताता हूं. मैं 5% लिग्नोकेन एम्ब्रॉयडरी यूज करता हूं. इट्स अ वेरी गुड टॉपिकल एंड पेशेंट रिलीफ बड़ी जल्दी. Would you add steroid in that also? नो सर, नो स्टीरॉइड, नो स्टीरॉइड. Sir, Postirisan के कौन सा था? Postirisan 4. Postirisan 4. सर मैंने नहीं यूज किया. जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने 3 मैनेजमेंट प्लान बनाए. जी सर. एक तो आपने लोकल सिस्टमिक और फिर आपने डाइटरी इंस्ट्रक्शन. जी जी. If there is infected hemorrhoids, first or second day, Again, what you can do? First, second what an appropriate antibiotic you will use? वेरी गुड क्वेश्चन. रिपीट कर दें. इन्होंने पूछा है जी कि अगर आपके पास फर्स्ट और सेकंड डिग्री इन्फेक्टेड, आपने कहा Yes. फर्स्ट और सेकंड डिग्री आमतौर पे सर नहीं होते. इट इज suspected infection that what. अच्छा, फिर देन सर आप एब्सेस हो, सब म्यूकोजल एब्सेस हो, इट रिक्वायर्स अ ड्रेनेज. और एक चीज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, पेन पोस्ट ऑपरेटिव नहीं होती है. आपको पता है उसके लिए एंटीबायोटिक फ्लैजेल रिकमेंडेड है कि अगर आपको हेमोरेक्टमी आपने की है, जी जी, 5 days कोर्स, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रेफरेंस है. What is the idea behind your mind? मैं अगर आपने हेमोरेक्टमी की है, हेमोरेक्टमी के बाद पेशेंट की असल अजाब आपको सिर्फ नीडिंग की नहीं होती, पेन होती. उसमें गलती सर्जन से ही होती है, वो इंटरनल स्फिंक्टर ले जाता है आमतौर. उसको जब वो पेडिकल टाई करते हैं ना, तो थोड़े से फाइबर उसके ले जाते हैं. लेकिन पेन आप जो मर्जी कर लें, हमने बड़े संभाल के भी ऑपरेशन किए हो तो दर्द जरूर. उस पेन के लिए रिकमेंडेड बाकी बहुत सारी चीजें हैं. पेन किलर दे दें, टॉपिकल एप्लीकेंट दे दें, लेकिन किताब लिखती है कि अगर आप फ्लैजिल 5 जो मेट्रोनिडाजोल है वो आप 5 days के लिए दे दें, तो इट समहाउ, हाउ डज इट रिलीव द पेन, ये तो नहीं पता, लेकिन पेन रिड्यूस हो जाए. एक्चुअली सर इसमें ये है कि कंबाइंड थेरेपी इसमें अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्लस मेट्रोनिडाजोल, जी, अगर ये 2 या किस लिए दे दें, इसमें आइडिया बिहाइंड दिस इज दैट बिकॉज metronidazole cover both the anaerobic and aerobic organisms. जी, जी. So if we suspect that and ये पोस्ट हेमोरेक्टमी बात कर रहे हैं. I am talking about the infected hemorrhoids. वो नहीं If सुने. there is infected hemorrhoids, so if we want to give antibiotics, if we give combined therapy like metronidazole and ciprofloxacin, do you think it is
justified देखें जी if एब्सेस this or not? एब्सेस जो है अगर तो देखिए मैं लेट मी बी वेरी क्लियर है, आप बात कर रहे हैं ना, मेरा ख्याल है जो आप बात कर रहे हैं वो सब इकोजल एब्सेस की बात कर रहे हैं। Infection भी होती है। इनफैक्ट उसमें भी ड्रेनेज रिकमेंडेड है नंबर 1। पोस्ट ऑपरेटिवली यस देन यू कैन यूज सिप्रोफ्लॉक्सासिन और फ्लैजेल, वैसे हम लोग यूज करते हैं 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन अलॉन्ग विद फ्लैजेल और हम इंजेक्टेबल देते हैं। सर थर्ड Question. डिग्री या 4th डिग्री जो हेमोरॉइड्स होते हैं जनाब उनमें कंजर्वेटिव अगर डालना हो तो डेफ्रॉन पे डाला जा सकता है, स्टार्ट कर सकते हैं रोटेशन। हाँ देखिए क्या सर उसके मैं बताता हूँ, 3rd डिग्री जो होती है बाय डेफिनेशन ये वो है जिनको आप मैनुअली रिड्यूस करें। दे क्वाइट ऑफन, मैंने आपको बताया कि मैं ऑपरेशन के बाद भी डेफिनेट देता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसका रिजल्ट पेन में और ब्लीडिंग में बड़ा अच्छा आता है पोस्ट सर्जरी। सवाल आपका ये है कि इस पे आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करें। मैं आपको बताऊं ये होती नहीं है मैनेज। हमने कोशिशें की हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन ये कोर्स हम कराते हैं 21 दिन का, यूजुअली पेशेंट पे, लेकिन 2 महीने बाद फिर आता है। कोशिश करें कि अगर एक पेशेंट आपके पास आ गया है ऐसा जिसको 3rd डिग्री या 4th डिग्री, तो सर आप उसकी ऑपरेशन डोंट गो, बिकॉज ये लिंगर ऑन ट्रीटमेंट्स जो है ये आपके लिए बैड नहीं। अब मतलब हमारे ना अनफॉर्चुनेटली सिस्टम कुछ ऐसा है कि हमारा कंपटीशन कोएक्स से है। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा जनरल प्रैक्टिशनर किसी तरीके से किसी भी कोएक्स से किसी भी जगह पे किसी भी फील्ड में आ रहे हैं, और डेफिनेट इलाज करें उसका, ऑपरेशन करवा दें। क्या जी नहीं हमने आपको रेफर करना है ऑपरेशन करवा, सर प्रेगनेंसी में जैसे आपने फरमाया कि ये सेकंड ट्राइमेस्टर में हो जाता है, नो डेफनॉम इन सर आप क्या एडवाइस करेंगे उसके लिए? टॉपिकल ऑइंटमेंट्स। पहले बात जब आप आपसे सॉरी वो एक और प्रॉब्लम था, जो आपकी हेमोरॉइड्स है ना वो आपको प्रॉब्लम देती हैं प्रेगनेंसी में। होता क्या है कि जो ग्रेविड यूट्रस बढ़ता जाता है साइज में, पेल्विक वेन्स की स्पेस कम होती है, पहले से कंप्रेशन आता है, लीडर एडिमा एंड हेमोरॉइड्स आर द प्रॉब्लम एंड दे समटाइम्स स्टार्ट ब्लीडिंग। अब वहां पे आपको बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हमारे पास एक्यूट इमरजेंसी में बहुत फ्रैंक ब्लीडिंग के साथ भी पेशेंट्स आते हैं। ट्राई मैडम नॉट टू गिव डेफनॉम, पहली बात। दूसरा, आपने मेहरबानी करके उसके ऊपर टॉपिकल एप्लीकेंट पे जोर करना है। वो क्या है तो एडिनल सोप गॉल वो रखें, बड़ा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और एक अभी हेमोरॉइड्स की टॉपिकल ट्रीटमेंट आई है, एक बार मुल्कों में तो है, जो कि अभी हमारे मुल्क में शायद FDA अप्रूव नहीं है अभी, सारे हमारे ग्रेप ने नहीं अभी मंजूर की। टॉपिकल मैडम एक एप्लीकेशन आ गई है पाकिस्तान में, मार्केट नहीं हुई, वो इस चीज का आंसर है जो आप पूछ रही है ना कि हेमोरॉइड, वो टॉपिकल एप्लीकेशन आई हुई है इस नाम से सर आपको कई दफा पेशेंट को एस्पिरिन दे मैं अभी जवाब दूँ जी। सर कई दफा पेशेंट को एस्पिरिन दे नहीं, एस्पिरिन से अगर ब्लीडिंग हुई है ना तो देन यू हैव टू स्टॉप एस्पिरिन। नो यू कांट, वो तो ब्लीडिंग डायलिसिस में है। सर हेमोरॉइड पे माशाल्लाह आपका बड़ा अवेयरनेस हमें हुई है, थोड़ा सा अगर कैनल फिशर पे बता दें। मैडम इजाजत दे दे, मैं शुरू हो जाऊँ। क्योंकि पेशेंट बड़े आते हैं जगह तक फिशर आप ऐसा करें बस खत्म, वो पीछे तालियां मारनी शुरू कर दी हैं कि एक्चुअली लंच खाना है। अच्छा, I will take only 2 questions please। वो बैंड लाइगेशन के 10 डे पे जो आपने ब्लीडिंग कही सर, उसके बारे में उसको किस तरह करेंगे, कॉटराइज करेंगे, क्या करेंगे? दिस इज अ रेलेवेंट क्वेश्चन। मैंने आपसे पहले रिक्वेस्ट की थी कि कोशिश करें कि बैंड लाइगेशन अवॉइड करें, अगर करनी है तो वहां करें जहाँ पे आपको 10वें दिन अगर ब्लीडिंग हो जाए तो आप सर्जन को पास या सर्जन अरेंज करो। अब आपने एज अ जीपी क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपने कुछ नहीं करना, आपने इनोरेक्टल पैकिंग करनी है विद एडिनल इन सोप गॉज and let the surgeon face the music बेचारा। एनएल फिशर की बात, सॉरी एक मिनट सर, आपने एनएल फिशर की बात की है, इस पे आई एम रेडी। आप मैडम से रिक्वेस्ट करें क्योंकि एनएल फिशर 2 लफ्जों में मैं बयान नहीं कर सकूंगा, इसकी कई किस्में हैं। एक्यूट कौन सा होता है, क्रॉनिक कौन सा होता है, दोनों की मैनेजमेंट फर्क है। अच्छा सर, एक तो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सर, आपने कहा कि जो है इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी जो है इनोरेक्टल जंक्शन से क्या वो प्रॉक्सिमल दायरा लगेगा
proximal to this inorectal junction, कितना proximal होना चाहिए? This you will learn only through experience. इसकी गाइडलाइन पता क्या किताब लिखती है? किताब ये लिखती है, आप जरा गौर से सुन लेना आपने, इनोरेक्टल जंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, बेस ऑफ हेमोरॉइड देख लिया, आपने प्लीज अपनी नीडल पैरेलल टू द इनर कैनाल रखनी है, क्योंकि अगर आप इंजेक्शन प्रोस्टेट में देंगे प्रोस्टेटाइटिस होगा, अगर आप इंजेक्शन लेटरल देंगे pelvic abscess, अगर आप जी लेटरल में भी था, अगर आप इस तरफ घुस गए तो इम्पोर्टेंस होगी लेंस में, और आप किताब पढ़ के देख लें उसमें लिखा हुआ है कि अगर सही इम्प्रॉपर इंजेक्शन हो इतना इंटेंस फाइब्रोसिस होती है और इतनी सीवियर इन्फ्लेमेशन जनरेट होती है कि परफोरेशन होके रेक्टोवैजाइनल फिस्टुला, तो आप उसको तरीका क्या है कि जब आप इंजेक्ट करें, अगर आप चाहें आई कैन अरेंज अ क्लास फॉर you can come to my unit. I come on my OT day. I will help you out to do आप आगे मैं आपको स्टेरॉइड थेरेपी भी सिखा सकता हूँ, आपको प्रॉपर स्कोपी भी। अच्छा सर, ये डेवलप आपने कहा प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? जी, इसलिए कि कंपनी, ये 1 साल पहले हमारी बहस हुई थी कंपनी से, कंपनी ने अपने हेड ऑफिस में, जो हम भी इनका हेड ऑफिस है, ये क्वेश्चन इन्होंने प्रेजेंट किया था और उन्होंने कहा था जी कि सिंस हमारे पास एस्टैब्लिश्ड डेटा सफिशिएंट अनफ नहीं है तो कंपनी ने फिर मना कर दिया कि प्रेगनेंसी भी नहीं। सर एक दो चीजें मैं बात करूंगा, एक तो ये है कि प्रेगनेंसी में अगर कोई भी मेडिसिन देते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि फीटल एनोमलीज जो है और कैरियोजेनिसिटी वो पहले 3 माह तक होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है, उसमें तो चले ये जो प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में हेमोरॉइड तो लेट स्टेज पे आती है, मैंने बताया मैडम, तो उसमें अगर देते हैं तो ऑर्गेनोजेनेसिस का तो मसला खत्म नहीं आप नहीं बाकी क्या मेरी बात सुने ना जी, सिर्फ ऑर्गेनोजेनेसिस तो इशू नहीं है ना, आप यह बात भूल जाएं कि वो प्लेसेंटल सर्कुलेशन में प्लेसेंटा की अटैक और इतने इश्यूज होते हैं। इन्होंने कंपनी ने ना, आपका पॉइंट वैलिड है कि ऑर्गेनोजेनेसिस ठीक है मान लिया, लेकिन जब जो मैन्युफैक्चरर है ना वो सेफ्टी डाटा नहीं प्रोवाइड कर सके तो हम क्यों रिकमेंड करें? थैंक यू वेरी मच।